Hello students, this has been the fourth lecture for the chapter 3 matrices. Today we will talk about the inverse matrices. When we are talking about the inverse of a matrix, for that its definition has been like this one. Definition बोल रहे हैं तो for any square matrix, for any, what kind of matrix I am talking about? The square matrix. This cannot be applicable for a rectangular matrix. It is only for the square matrix. Inverse can be possible for any square matrix if A into what another matrix B or B into matrix A is equal to identity matrices. Yani if we got two square matrices of the same order, A and B are the two of the square matrices of the same order, such that AB into BA both has been equal to which one? Identity matrices. Then we can say that B is the inverse of A, denoted by A inverse, that is called as a inverse of matrix A. Inverse of a matrix A. Clear about it? So B, that will be called as an A inverse, that will be called as an inverse of matrix A. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो अब A inverse obtain करने के लिए जो मेथड है, that is there are two different methods to obtain the inverse of a matrices. एक मेथड हमें थर्ड चैप्टर में देखनी है, सेकंड मेथड वी हैव टू सी इन द फोर्थ चैप्टर. अब यहाँ पे A इनवर्स डिटरमाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट अ फ्यू ऑफ द एग्जांपल symbols. Those symbols will be mainly utilized to obtain the A inverse. Now उस symbols के लिए जो बात कर रहे हैं उसके लिए ये जो सिंबल में फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मली सिंबल में हम R या J से मैं डिनोट करूंगा. R for the row, J for the column. First symbol that we have to talk about, that symbol will be called as the Ri Rj. क्या सिंबल मैंने यूज किया है यहाँ पे? फर्स्ट सिंबल दैट आई हैव यूज हियर, दैट इज Ri to Rj. Ri to Rj का मतलब I और J कोई भी नेचुरल नंबर्स होंगे. That means R for the row, J is also for the which one? Column row number. R1 R2 हो तो फर्स्ट एंड सेकंड रो, R1 एंड R3 हो तो फर्स्ट एंड थर्ड रो. Ri to Rj का मतलब होता है इंटरचेंज. इंटरचेंज ith row with jth row. Interchange the ith row with jth row. Interchange the ith row with the what? Jth row. Example यहाँ पे दे रहा हूं. Suppose आपको कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है, that has been 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैट्रिक्स ये दिया हुआ है. अब यहाँ पे इफ आई यूज दिस सिंबल R1 changes to R3, R1 changes to which one? R3. इसका मतलब होगा यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड रो चेंज हो जाएगी, यानी कि थर्ड रो विल कन्वर्टेड टू द फर्स्ट रो, first row will be converted to the third row, and this 4 5 6 second row remains as it is. This will be called as the R1 changes to R3, यानी कि R first row is convert with the third row. First row के एलिमेंट थर्ड रो में चले जाएंगे, थर्ड रो के एलिमेंट फर्स्ट रो में चले जाएंगे. That will be the which one? First symbol that we have to talk about. Now the second symbol that we have to talk about, that is K into Ri. K into which one? Ri. K into Ri का मतलब होगा यहाँ पे ith row multiply
बाय के, आई रो को ith रो यानी कि पूरे मैट्रिक्स को नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, जो ith रो है वही k से क्या होगा मल्टीप्लाइड, ith रो विल बी मल्टीप्लाइड विद द k. For that example again मैं repeat कर रहा हूं, suppose matrix A have been given, that is 1 वही same 1 2 3 वाला ही मैट्रिक्स ले रहा हूं, क्लियर. तो मैट्रिक्स A जो है वही इसके लिए बात कर रहा हूं. इस मैट्रिक्स A में अगर मैं 3r2 लिख रहा हूं, तो अगर 3r2 अप्लाई करूं तो ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसमें थर्ड और सेकंड रो r2 यानी कि सेकंड रो will be multiplied by 3 यानी कि फर्स्ट रो 1 2 3 as it is, सेकंड रो 3 से मल्टीप्लाई होगी तो it will be 12 15 18, then थर्ड रो as it is 7 8 9. समझ में आया? सो ri2 rj का मतलब दोनों रो इंटरचेंज, k into ri का मतलब जिस रो है उस रो को k से मल्टीप्लाई करना है, that will be the which one k into ri. And the third symbol that we have to talk about, that symbol is ri changes to ri plus k into rj. Clear? अब ये सिंबल का मतलब क्या होगा? So that means first of all jth row multiplied by k, jth row will multiply with the k, that will multiply by what you can say k, and it will be added to ith row, then it will be added to the which one ith row. Just वही एग्जांपल ले रहा हूं, अगेन एग्जांपल में मैट्रिक्स A has been given 1 2 3 4 5 6 7 8 9. If I write down like this one, r2 changes to r2 minus r2 plus 2 times r1. क्या चेंज किया? कौन सी रो में चेंज करा? r2 में. तो उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो एज इट इज रहेगा. जो दूसरी रो होगी उसको ही आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो. यानी कि इसका मतलब हुआ फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड करो, तो फर्स्ट रो यहाँ पे जो आंसर होगा ना वो एज इट इज रहेगा, वो एज इट इज रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा. चेंज कहां पे होगा? R2 चेंजेस बोला हुआ है, यानी कि चेंजेस सिर्फ सेकंड रो में ही होगा. तो सेकंड रो में ये जो एलिमेंट है ना 4 5 6, उसमें 2 into r1 आएगा. तो सेकंड फर्स्ट रो के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 into 1 2, फिर ये एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, ये एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, then it will be 7 8 9. Clear? So this will be equals to what you will get? 1 2 3 6 9 12 7 8 9. That will be your matrix. Clear? अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करता तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आता? माइनस. अगर r2 माइनस r1 लिखता तो यानी कि फर्स्ट रो सेकंड रो में क्या हो जाती? माइनस. बीच में प्लस तो ऐड करो, बीच में माइनस तो माइनस करो. बट चेंजेस जिस रो में करनी है वो यहाँ पे लिख रहा है कि आपको चेंज कौन सी रो में चाहिए. आपको फर्स्ट रो में चेंज चाहिए तो यहाँ पे r1 लिखो, सेकंड रो में चेंज चाहिए तो r2 लिखो, थर्ड रो में चेंज चाहिए तो r3 लिखो. तो वो रो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा. उसमें दूसरी कोई रो जो नंबर चाहो उससे मल्टीप्लाई करके या इवन उससे डिवाइड भी करके, नेसेसरी नहीं सिर्फ मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके. अगर 2 से डिवाइड करना होता तो यहाँ पे मैं 1/2 लेता, 2 से डिवाइड करना होता तो मैं यहाँ पे क्या लेता? 1/2 लेके फिर इसको फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करता. तो ये 3 सिंबल सबसे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है. इस सिंबल का मतलब ith और jth रो इंटरचेंज, इस सिंबल का मतलब ith रो को वो k से आप मल्टीप्लाई करोगे, और इसका मतलब ith रो में चेंज होगा
क्या चेंज होगा, h रो प्लस दूसरी कोई रो उसको k से मल्टीप्लाई करके आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्लियर अबाउट इट? इज देयर एनी डाउट? ओके, तो ये लिख लो फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अब इनवर्स मैट्रिसेस फाइंड आउट करने के लिए ये सिंबल्स यूटिलाइज करेंगे, राइट, एंड देन वी विल फाइंड आउट द इनवर्स मैट्रिसेस। ये जो मेथड अभी पढ़ा रहा हूं इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने की, दैट इज कॉल्ड एज द व्हिच वन, रो एचेलॉन मेथड और रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। इट विल बी कॉल्ड एज द रो एचेलॉन मेथड और रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, राइट। यानी कि आप एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो ऑन द रोज। ये जो ऑपरेशन मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, ri to rj, सेकंड ऑपरेशन ri मल्टीप्लाइड बाय k, ri changes to ri to which one, k ri, they will be called as the which one, elementary operation। अगर वो रो पे कर रहे हो then it will be called as a row elementary operation। अगर वो आप कॉलम में कर रहे हो then it will be called column elementary operation। मैक्सिमम नॉर्मली रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि रो से ही हम करेंगे, बट ये चीज कॉलम से भी हो सकती है। कॉलम से कर रहे हो तो r की जगह सिंबल में c यूज होगा, c फॉर द कॉलम, r फॉर द रो। क्लियर? तब यहाँ पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने किसके लिए बोला, इनवर्स मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मेनली हमें देखना है दैट इज 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3। तो अभी जो बोल रहा हूं ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो रूल्स बोल रहा हूं ना, ये रूल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फॉर व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, फॉर अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए बात कर रहा हूं। फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A has been given in form of which one, ABCD। अब इसका इनवर्स निकालना है तो आपका सम स्टार्ट होगा यहां से, मैट्रिक्स A is equals to what you will get, A into I is equals to A, और A is equals to मैट्रिक्स A into आइडेंटिटी मैट्रिसेस। इस तरह लिख सकते हो, या तो A into I is equal to A से लिख सकते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे A into I is equal to A से। क्यों? क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करो, it will be equals to which one, matrix itself। so A into I is equal to A। अब हम यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। व्हाट वी विल अप्लाई, वी विल अप्लाई द ऑपरेशन। वो ऑपरेशन इस तरह अप्लाई करना है ताकि यहाँ पे जो I A है वो कन्वर्ट हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। उसके अकॉर्डिंग ये जो मैट्रिक्स होगा दैट विल बी कन्वर्टेड टू A इनवर्स। ये कोई भी फॉर्मेट में कर सकते हो, AI is equal to A से कर सकते हो, या तो उल्टा करके भी लिखो। दैट मींस व्हाट इट इज, मैट्रिक्स A that has been equals to identity matrices into matrix A। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करो, मैट्रिक्स A को कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करूंगा, आइडेंटिटी में। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिसेस जिसमें कन्वर्ट होगा वो A इनवर्स। ये मैट्रिक्स A एज इट इज रहेगा। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज I इज इक्वल टू, अभी हमने देखा, इनवर्स इनटू मैट्रिक्स इटसेल्फ विल बी कॉल्ड एज द आइडेंटिटी मैट्रिसेस। डेफिनेशन अभी पढ़ी ना, क्या मैंने डेफिनेशन बोली इनवर्स के लिए, मैट A इनटू B इज इक्वल टू B इनटू A इज इक्वल टू I
तो B will be called as the which one? A inverse, यानी कि A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to क्या होगा? I, यानी कि कोई भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिसेस आ जाए, then what that two matrices are inverse of each other. Clear? तो अब ये ट्रांसफर कन्वर्सेशन कैसे करें? तो ये कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब ये एलिमेंट्री ऑपरेशन जो कन्वर्ट करना है उसमें ध्यान रखना है कि हम मुझे मैट्रिक्स ए को किसमें कन्वर्ट करना है? ए बी सी डी को मैं कन्वर्ट करूंगा आइडेंटिटी मैट्रिसेस 1 0 0 1। राइट? तो सारे एलिमेंट एक साथ कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे। अगेन रिपीट कराओ, इसका ये कन्वर्सेशन डायरेक्ट एक स्टेप में नहीं होगा। तो वो कन्वर्सेशन करने के रूल्स है। सबसे पहले यहां पे 1 लाना है, सबसे पहले यहां पे क्या लाना है? 1। ऑर्डर ध्यान रखना है, यू बनेगा, फिर यहां पे 0 लाना है, उसके बाद वापस यहां पे 1 लाना है और लास्ट में यहां पे 0। इस तरह से आपको यू फॉर्म करना है 1 2 3 4। यही ऑर्डर में आपका टर्म नंबर्स सेट करोगे। ऑर्डर याद रहा? सबसे पहले इसको 1 में कन्वर्ट, फिर यहां पे 0 में कन्वर्ट, फिर यहां पे थर्ड स्टेप यहां पे 1, उसके बाद 0। रूल एक ही है, कोई कॉलम से स्टार्ट करना है। पहली कॉलम में पहले 1, फिर नीचे 0, फिर दूसरी कॉलम में पहले 1, फिर बाकी सारे 0, फिर थर्ड कॉलम में जहां पे 1 लाना है वहां पे पहले 1 लाओ, उसके बाद उस कॉलम में 0 लाओ। तो ऑर्डर याद रहा? सबसे पहले क्या लाना होता है? कोई फर्स्ट कॉलम स्टार्ट करो, वहां पे 1 लाओ, फिर उसके नीचे जितने भी एलिमेंट है वहां पे 0, फिर सेकंड कॉलम में जहां पे 1 चाहिए वहां पे पहले 1 लाना है, बाद में उस कॉलम के एलिमेंट में 0 लाना है। क्लियर? तो ऑर्डर क्या आया बोलो तो? पहले 1, फिर दूसरा यहाँ पे 2 सेकंड नंबर यानी यहाँ पे 0, फिर थर्ड नंबर यहाँ पे 1, फिर फोर्थ नंबर यहाँ पे 0। ऑर्डर याद गया? अब रूल्स याद रखो। फर्स्ट स्टेप यानी कि यहाँ पे 1 लाने के लिए फिक्स रूल है, क्या करो? आइदर यू कैन इंटरचेंज, कितने ऑप्शन है? इंटरचेंज द रो, दो रो को इंटरचेंज करके ला सकते हो, और व्हाट फर्स्ट रो को जो R1 है वो R1 को कोई नंबर से डिवाइड करके भी आप 1 ला सकते हो। जो नंबर है उससे डिवाइड करो तो ऑटोमेटिकली 1, बट मेन जो आपका प्रेफरेंस होगा तो R1 में 1 लाएंगे, R1 प्लस K इंटू R2 यूज करके, मैक्सिमम ये यूज होगा। गए? अगर ना हो तो ये, और अगर यहां पे 0 हो तो फिर हम रो इंटरचेंज करके लाएंगे। अगर फर्स्ट एलिमेंट 0 हो तो रो इंटरचेंज, बाकी हम हर बार फर्स्ट रो में जो सेकंड रो में जो भी एलिमेंट है उसको ऐड मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट करके हम ऊपर 1 लेके आएंगे। क्लियर अबाउट इट? ओके। उसके बाद सेकंड स्टेप R2, तो R2 कैसे आएगा? R2 में 0 हर बार इस तरह आएगा, R2 माइनस K इंटू R1, यानी कि ये जो 1 है उसको ये सेकंड रो में जो भी एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या लाएंगे? 0। क्लियर? उसके बाद मेरा कौन सा स्टेप आएगा? थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में यहाँ पे अगर आपको क्या लाना है? इफ आई रिक्वायर टू ऑब्टेन द 1 हियर, तो यहाँ पे 1 सिर्फ एक ही मेथड से आ सकता है कि सेकंड रो के ये एलिमेंट में 1 लाना हो तो कंपलसरी जो भी डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 1 लाओ, उसके बाद ऊपर 0 लाओ। एग्जैक्ट पता समझ में चलेगा, बट मेन याद क्या रखना है? ऑर्डर याद रखना है। क्या याद रखना है? ऑर्डर। पहले 1 फिर 0, फिर 1 फिर 0, 1 0 1, ये यू से याद करना। यही ऑर्डर में आपको क्या करना है? मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिसेस 1 0 0 1 में कन्वर्ट करना है। चलो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल हैज बीन लाइक दिस वन। You have been given a matrix A that has been given as the 5 3 2
ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके लिए हमें A इनवर्स चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप, व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? ओके, नाउ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू I इंटू A। मैट्रिक्स A विल बी इक्वल टू क्या होगा? I इंटू A। क्लियर? वहां से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे A की जगह वैल्यू डाल देंगे। वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A क्या है? 5 3 2 1 इज इक्वल्स टू I की जगह वैल्यू डाल दो 1 0 0 1 इंटू व्हाट? A इंटू व्हाट? A। क्लियर अबाउट इट? ओके, अब इससे आगे जाना हो तो कैसे आगे जाएंगे? इससे तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में। ये A एज इट इज रहेगा अप टू द विच वन? लास्ट है। जो चेंज होगा यहां पे और यहां पे, यहां पे जो मैं चेंजेस करूंगा वही चेंजेस मुझे ये मैट्रिक्स में करना है। दोनों साइड मुझे सेम चेंजेस करने हैं। तो मेरा पहला स्टेप क्या है? ये पहले एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना है। यहां पे क्या है? 5 को किसमें कन्वर्ट करना है? 1। तो सबसे बेटर होता है कि मैं 5 से डिवाइड कर दूं। 5 को 5 से डिवाइड करो तो ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। बट फिर यहाँ पे अपॉन में टर्म्स आएगी, यहाँ पे अपॉन में टर्म्स आएगी, तो वो कैलकुलेशन में कई बार डिफिकल्टी क्रिएट करती है। सो ऑलवेज भी बेटर ऑप्शन ये होगा कि सेकंड रो के जो एलिमेंट है उसका यूज करके यहां से 5 में 1 लेके आओ। तो यहां पे क्या है? 2। 5 और 2 से 1 लाना हो तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो होगा 4, और 5 में से 4 जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। इसलिए मुझे अगर यहाँ पे 1 लाना है फर्स्ट रो में, यानी कि मैं चेंजेस कर रहा हूं फर्स्ट रो में, तो क्या लिखूंगा? R1। क्या लिखूंगा? R1 चेंजेस टू, किसमें चेंज होगा? R1। अब उसमें R2 डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैं माइनस कर रहा हूं। यानी कि सेकंड रो के सारे एलिमेंट मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 2 से। वो मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। ये 2 2 जा 4 ऊपर माइनस हो जाएगा। सो जस्ट लुक एट दिस वन, दिस हैज बीन 5, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 जा 4, तो वो माइनस कर रहे हो तो 5 माइनस 4, यहाँ पे 3 है। ये सेकंड रो के दोनों एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाइड हो तो ऊपर माइनस, सो -2। उस टाइम पे सेकंड रो रिमेन्स एज इट इज, दैट हैज बीन इक्वल्स टू, यहां पे भी वही चेंज करो, ये 1, यहां पे क्या है? 0 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहां माइनस करो तो ये 0, ये 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो 0 माइनस क्या आएगा? 2, ये 0 इनटू का A एज इट इज, इनटू का ये जो A है that will remain the which one as it is, वो as it is ही रहेगा। अब simplifying here further up क्या आएगा? 5 minus 4, 1 1 2 1, यहाँ पे क्या होगा? it will be 1 minus 2 0 1 into what you got it? A। चलो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, यहां पे 1 आया। अब ये 1 कभी नहीं जाना चाहिए, तो फिर नीचे क्या लाना है? 0, यानी कि मुझे चेंज करना है कौन सी रो में? सेकंड रो में। इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे R2 में 0 लाना है तो बट ऑब्वियस है 2 में से 2 माइनस करो तो 0 आता है। मैंने यहाँ पे बोला है कि सेकंड वाला हर बार कैसे करना है? R1 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो जो यहाँ पे है, उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस करना है। यहाँ पे नंबर क्या है? 1, तो उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो इससे 2 हो जाएगा, फिर उसे माइनस करो तो कौन सी रो में चेंज हो रहा है? R2 में। R2 चेंजेस टू, R2 यानी कि 2 एज इट इज, उसको यहाँ पे 1 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो 2 minus 2 R2, क्लियर? सॉरी, R2 minus 2 R1,
सो दैट मींस ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो चलो कैलकुलेशन बोलो क्या होगा यहाँ पे 1 1 फर्स्ट रो एज इट इज, चेंज कौन सी रो में है, सेकंड रो में। ये 2 है, उसमें से ये 2 माइनस होगा, ये 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो 1 माइनस 2 होगा, इज इक्वल टू, यहां पे चेंजेस करो तो फर्स्ट रो एज इट इज, ये 0 है तो इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके यहां माइनस करो तो 0 माइनस 2, और यहां पे ऑलरेडी 1 था, इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 2 4, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, तो वो 4 ऐड होगा इनटू ए। क्लियर? सो व्हाट यू गॉट इट हियर, इट हैज बीन इक्वल टू 1 1 0 माइनस 1 इज इक्वल टू, सामने यहां पे क्या आया 1 माइनस 2 5 इंटू ए। चलो सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप यानी कि यहां पे मुझे क्या लाना है +1, यह क्या माइनस, तो थर्ड स्टेप यानी कि यहां पे 1 लाने के लिए जो भी डिजिट यहां पे होगा उससे डिवाइड कर देना, फिक्स है, ये 1 लाना है ना, ये 1 लाने के लिए जो भी डिजिट वहां पे ना उससे डिवाइड ही करना है, भूल से भी ऊपर वाले टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करना मत सोचना, क्योंकि अगर मैंने इसको यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करके 1 लाने गया ना तो ये मेरा 0 भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि सिर्फ ये डिजिट पे आप ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो पूरी सेकंड रो पे, तो सेकंड रो के जितने भी एलिमेंट है वो चेंज होंगे, तो ऑलरेडी सेकंड रो में आप 0 लेके आए हो, जो डिजिट आप लेके आए हो उससे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको जो 4 डिजिट चाहिए 1 0 1 0, वो उसमें से जो डिजिट आप लेकर आए हो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए ये 0 डिस्टर्ब ना हो, इसलिए यहां पे 1 लाने के लिए सेकंड रो को उसी नंबर से डिवाइड करो, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो क्या होगा -1 इंटू 0 वो 0 ही रहेगा, ऐड किया होगा तो चेंज होगा, इसलिए हमें यहाँ पे जो भी डिजिट है उससे कंपलसरी डिवाइड करना है, क्या करना है उससे कंपलसरी डिवाइड करना है, करो तो यहाँ पे -1 से डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया एक ही बचेगा 1 1, -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0, ये हो जाएगा +1, यहाँ पे भी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट रो एज इट इज 2 5 इंटू ए। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंप्लीट, अब ये फोर्थ स्टेप यहाँ पे 0 चाहिए, यानी कि फर्स्ट रो में चेंजेस चाहिए तो R1, और ये चेंजेस हर बार ये 1 से यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0, कभी भी 0 लाने के लिए 0 से मल्टीप्लाई मत करना, ये मत करना गलतियों, ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए, 0 लाने के लिए 0 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, सो 0 लाने के लिए 0 से मल्टीप्लाई कभी नहीं करना है, वो ऐड सब्ट्रैक्ट करके ही 0 लाना है, तो यहाँ पे 1 है, उस 1 को ऊपर माइनस करो, यानी कि फर्स्ट रो में सेकंड रो माइनस, यानी कि R1 माइनस R2 करो, चलो R1 माइनस R2 करोगे तो ये 1, ये 1 माइनस 1 0, ये 0, ये 1, समझ में आया ना कैसे आया, ये 1 था उसमें से ये माइनस करोगे तो 1 माइनस 0 1 माइनस 1, सामने भी वही 1 माइनस 2, ये -2 है, उसमें माइनस को माइनस 5 करोगे तो माइनस माइनस +5, 2 -5 इंटू क्या आएगा a, so that means it will be a which one 1 0 0 1, right, that has been equals to what you got here, क्या मान मिला यहाँ पे -1 3 2 -5 into what you got it a, that will be the which one your answer. Any problem about this? Chalo, one more question. Matrix A is given 2 3 0 1.
स्टार्टिंग स्टेप क्या होगा बोलो तो? नाउ a इज इक्वल टू व्हाट यू कैन से I into a इज इक्वल टू I into a की जगह वैल्यू डाल दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 2301 इज इक्वल टू I यानी कि 1001 into a एज इट इज। पहला स्टेप यहाँ पे क्या चाहिए? 1। अब ये 1 लाने के लिए मैंने कितने ऑप्शन दिए हुए? 1 2 3। जो ये सबसे पहला वाला ऑप्शन कब एप्लीकेबल है? अगर फर्स्ट रो में 0 हो तो ही करना है, बाकी नहीं करना। यहाँ पे 0 नहीं है तो वो अप्लाई नहीं होगा। अब यहां से 1 लाना, तो 0 से किसी को ऐड सब्ट्रैक्ट करके 1 लाओगे तो 0 को कहीं किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही रहेगा, तो वो 2 पे इफेक्ट नहीं डाल सकेगा। और हर बार फर्स्ट स्टेप यहाँ पे 1 लाने से ही करना है। तो अगर नहीं हो रहा है ये 0 से काम, तो हम इसका यूज करेंगे, यानी कि 1 लाना है तो जो नंबर है फर्स्ट रो में उस नंबर को उसी से डिवाइड करो, यानी कि फर्स्ट रो विल बी डिवाइडेड बाय 2। 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। सो नाउ डिवाइडिंग द फर्स्ट रो बाय 2, व्हाट यू विल गेट हियर? 2 को 2 से डिवाइड करो 1 3 बाय 2। सेकंड रो एज इट इज, सामने भी फर्स्ट रो 2 से डिवाइड होगा तो 1 बाय 2 0 0 1 into 8। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे 0 चाहिए, हो गए। थर्ड स्टेप यहाँ पे 1 चाहिए, हो गए, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए ऑटोमेटिकली। तो अब इसे हमें कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ यहाँ पे रहा 0 लाना। और फोर्थ स्टेप में यहाँ पे 0 लाना हो तो 0 लाने के लिए उसके ऊपर या नीचे जो भी डिजिट है 1, उस 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। हर बार 0 लाने के लिए क्या करना है? जो नंबर चाहिए उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर। कौन सी रो में चेंज चाहिए? फर्स्ट रो में। तो R1 चेंजेस टू व्हाट? R1। अब यहां पे इसको 3 बाय 2 से मल्टीप्लाई करो, किसको? R2 को, और यहां पे माइनस करो। R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3 बाय 2 R2। करो ये चेंज, क्या होगा? 1 माइनस 0 1। क्यों 1 माइनस 0? R2 का ये एलिमेंट 0 3 बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो ये 1 डिस्टर्ब नहीं होगा, 1 ही रहेगा। 3 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 0 0 1, ये आ गया। सामने वो चेंज करो, ये 1 बाय 2 है, माइनस 3 बाय 2 करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बाय 2 रहेगा। 0, ये 1 को 3 बाय 2 से माइनस करोगे तो ये होगा माइनस 3 बाय 2 0 1 into a। क्लियर अबाउट इट? इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो ये जो आपका आया, दिस विल बी कॉल्ड एज द व्हिच वन? a इनवर्स। सेम वे a के साथ इनटू में जो आया वो आपका क्या होगा? a इनवर्स। सो हियर a इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 by 2 minus 3 by 2 0 1। क्यों ये a इनवर्स है? बिकॉज I is equal to a इनवर्स into a। क्लियर? तो मेन क्या याद रखना है? मैट्रिक्स A से स्टार्ट करो, A को किसमें कन्वर्ट करो? आइडेंटिटी में। ऑर्डर याद रखो, क्या होगा A को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने का? 1 0 1 0 1 2 3 4। U से 1 2 3 4 याद रहेगा। सो मेक श्योर दैट यू यूज दिस ऑर्डर। ऑर्डर फिक्स रहेगा, ऑर्डर कभी चेंज नहीं करना है। गाइड चेंज करने से आंसर आ जाता है, बट कई बार उसमें गलतियां ज्यादा होती है। सो ये ऑर्डर फिक्स रखोगे, गलती नहीं होगी। क्लियर अबाउट इट? लिख लो ये थियरी, मेनली लिखना क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
Okay. Next question that we have to talk about, that is third question. Matrix A is given as the 0, 2, 3, 4. You have to find out the A inverse. Right? यहाँ पे आपको A inverse find करना है. Now, for that, for this matrices A inverse find करना है. ओके, अब मैट्रिक्स A ये दिया हुआ है. A inverse फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये ऑर्डर. तो सबसे पहले 0 को किस में कन्वर्ट करना है? 1 में. 0 को 1 में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए अगर फर्स्ट रो का ये एलिमेंट अगर 0 होना तो फर्स्ट स्टेप हर बार ये होगा इंटरचेंज कर. क्या होगा हर बार? इंटरचेंज कर. फर्स्ट एलिमेंट 0 तो हर बार क्या करो? इंटरचेंज करो. यानी कि R1 and R2 will be interchanged. रो 1 and रो 2 will be interchanged. दोनों रो को इंटरचेंज करोगे तो मैट्रिक्स A आपका क्या बन जाएगा? That will be equals to, हाँ एक सेकंड, स्टार्ट क्या से करेंगे? स्टार्ट करने के लिए A is equal to A into I से स्टार्ट करना पड़ेगा ना. So here this has been given a matrix A. So matrix A will be equals to I into A से स्टार्ट करो. I into A में पहले A की जगह वैल्यू डालो 0 2 3 4 is equal to A. A की जगह वैल्यू I की जगह वैल्यू डालो 1 0 0 1 into A. अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 को कन्वर्ट करना है 1. तो 0 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए हर बार बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे पहला एलिमेंट 0 है तो कंपल्सरी 2 रोज को इंटरचेंज करो. इंटरचेंज द फर्स्ट रो विद द सेकंड रो, यानी कि R1 चेंजेस टू R2. चलो चेंज करो. क्या होगा यहाँ पे? 3 4 0 2. फर्स्ट सेकंड रो यहां पे चेंज हुई तो सामने भी फर्स्ट और सेकंड रो चेंज होगी. तो ये 0 ये 1 यहां पे 1 यहां पे 0 इनटू A. अब आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ना कि यहां पे 0 हो तो उसकी मदद से यहां पे 1 लाना पॉसिबल नहीं है. यानी कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस KR2 पॉसिबल नहीं है. तो पॉसिबिलिटी क्या रही? तो ये 3 को 1 में कन्वर्ट करना है. तो व्हाट यू हैव टू डू इट? R1 चेंजेस टू 1/3 into R1. फर्स्ट रो को 3 से डिवाइड कर दो तो ऑटोमेटिकली ये 3 will be converted to the 1. So here it will be equals to what you will get 1. यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा 4/3. सेकंड रो एज इट इज. सामने भी यहाँ पे 3 से डिवाइड करो तो ये 0. ये 1 3 से डिवाइड होगा 1/3 1 0 into A as it is. अब सेकंड स्टेप यहाँ पे 0 चाहिए, ऑलरेडी है. सेकंड स्टेप यही होता है ना, ऑब्टेन 0. थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या लेना होता है? 1 लाना है, बट यहाँ पे है 2. तो ये 2 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए थर्ड स्टेप में एक ही रूल है, उस रो को उस नंबर से डिवाइड करो. फिक्स रूल आओ. यहाँ पे 1 लाने का एक ही रूल है, उसको उस नंबर से डिवाइड करो. यानी कि ये सेकंड रो में चेंज चाहिए तो R2 चेंजेस टू 1/2 R2. ये सिंबल्स लिखने नेसेसरी है. ये सिंबल्स आप जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो वो मेंशन करो, उसके बाद ही उसे ऑपरेट करो. ये सिंबल नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. यू हैव टू राइट डाउन दिस सिंबल. अब ये 2 से डिवाइड होगा. सो व्हाट डज हियर यू विल गेट? हियर
1 4/3 0 1 सामने 2 से डिवाइड करो तो 0 1/3 1/2 0 into a। अब 1 2 3 हो गए। अब यहां पे क्या लाना है 0। ऊपर 0 लाना हो तो कहां पे 0 लाना है फर्स्ट रो में। तो R1 चेंज होगा। कैसे चेंज करना है R1 माइनस 1 का यूज करके 0 लाना है, यानी कि 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। नेगेटिव हो तो ऐड करो, पॉजिटिव हो तो माइनस करो। जैसे -4/3 करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो R1 चेंजेस टू -4/3 इंटू R2, यानी कि ये 1 कौन सी रो में सेकंड रो में, उसको -4/3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करो। सो ये 0 से इफेक्ट नहीं होगा। सो नाउ क्या आएगा यहाँ पे बोलो तो here it will give you the identity matrices 1 0 0 1 is equal to, सामने यहाँ पे वो चेंजेस अप्लाई करो। ये 0 था, सेकंड रो का ये एलिमेंट -4/3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इट विल बिकम 1/2 into 4/3 -4/6 होगा। 1/3 है, उसमें से ही वो 0 ही माइनस होगा, फिर 1/2 है ना 0 into a क्लियर। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको 1 0 0 1 is equals to -2/3 1/3 1/2 and 0 into a क्लियर। सो ये जो आएगा that will be your A inverse. So A inverse will be equal to -2/3 1/3 1/2 0। क्यों ये A inverse है? Because identity matrices is equal to A inverse into A। Clear? One more question, fourth one। Matrix A have been given that is equal to 2 1 5 3। इसके लिए आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द A इनवर्स। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, नाउ A इज इक्वल टू I इंटू A की जगह वैल्यू डालो 2 1 5 3 इज इक्वल टू I की जगह वैल्यू डालो 1 0 0 1 मल्टीप्लाइड विथ A। क्लियर। अब क्या करोगे, तो अब यहां पे 1 लाना है। कैसे, या तो 2 से डिवाइड कर लो, राइट। दूसरा ऑप्शन, या 5 से 2 में करो, 5 से 1 लाने का ट्राई करो। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, कहां से 5 से मैं 1 ला वहां पे 1 ला सकता हूं? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इट विल बिकम अ विच वन डिफिकल्ट वन, की वो 5 से वहां पे 1 लाना पॉसिबल नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन है, या तो पहले डिवाइड कर दो चलेगा, या दूसरा ऑप्शन ये है, इससे 2 से 5 में 1 कन्वर्ट करना इजी है। 2 into 2 4 करोगे, वो माइनस करोगे ऑटोमेटिकली आपको 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि पहले बिगर नंबर को ऊपर अरेंज कर देता हूं, यानी कि R1 और R2 को मैं पहले इंटरचेंज ही कर देता हूं। नॉर्मल केस में ये इंटरचेंजिंग कभी करना है जब पहला एलिमेंट 0, बट इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें 2 से वो यहाँ पे 1 लाना सिंपल हो, बट 5 से यहाँ पे 1 लाना डिफिकल्ट हो ना, तो वहां पे इंटरचेंज पहले कर दोगे चलेगा। क्लियर। तो इंटरचेंज करो दोनों रो को, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 3, फिर यहाँ पे क्या आया 2 1 इज इक्वल टू, सामने क्या होगा वो बोल दो तो 0 1 1 0 इंटू क्या आएगा A। अब ये 5 है, यहाँ पे 2 है,
2 से यहाँ पे 1 लाना हो तो ये 5 है, 5 को 1 में कन्वर्ट करना है तो R1 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करूंगा मैं R1 में? R1 माइनस 2R2, 2 2 जा 4, तो यहाँ माइनस होगा तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करके 1 लाया होगे चलेगा, बट फिर फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन आएंगे, वो ना करना है इसलिए मैं ये कर रहा हूं। बाकी वो करोगे फ्रैक्शन लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कई क्वेश्चन में आगे फ्रैक्शन आ ही गए, सो वो कर सकते हो। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे 1 लाओगे तो क्या होगा? 5 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 2 1, सेकंड रो एज इट इज 2 1, सामने 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस करो, 0 माइनस 2 माइनस 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 माइनस 0 1 1 0 इनटू क्या हुआ a। अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड, यहां पे 1 आ गया। दूसरा स्टेप यहां पे 0 लाना है, यानी कि कौन सी रो चेंज होगी? सेकंड रो चेंजेस टू R2 में यहां पे 0 लाना हो तो 1 से ही 0 लाना है, यानी कि फर्स्ट रो के 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में सब्ट्रैक्ट करो। क्लियर ऑलरेडी? तो वो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा? 1 1 2 माइनस 2 0 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहां पे R2 में चेंज तो R1 एज इट इज 1 माइनस माइनस प्लस 2 5 0 माइनस 2 माइनस 2 इनटू a। ध्यान रखना क्या हो रहा है? ये 1 है, इसमें ये माइनस 2 इनटू दिस टर्म, यानी कि माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5, इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके यहां पे ऐड किया तो 0 माइनस 2 माइनस 2, फर्स्ट सेकंड कंप्लीट। यहां पे 1 लाना हो तो कंपलसरी उससे डिवाइड कर दो, यानी कि R2 में 1 लाना है तो R2 डिवाइड बाय माइनस 1 या मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो वो माइनस माइनस प्लस 1 दे देगा, तो ये 1 1 0 1। क्लियर? तो यहां पे क्या होगा? माइनस 2 1, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5 प्लस 2 इंटू a। अब ऊपर 0 लाना है तो बट ऑब्वियसली फर्स्ट रो में चेंज करना है, R1 changes to R1 minus R2, R1 changes to R1 minus R2। वो अप्लाई करो, इसको यहां माइनस करो तो 1 1 माइनस 0 0 1 इज इक्वल टू, इसे यहां माइनस करो तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 5 1 माइनस 2 देन माइनस 5 एंड 2 इनटू a। तो ये जो आ रहा है वो आपका a इनवर्स बना, तो a इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 3 minus 1 minus 5 2। Why does so? As I is equal to A inverse into A. Clear? Okay, one more question of 2 plus 2, last question of 2 plus 2. Matrix A have been given as the 3 2 6 4। क्लियर? अब यहां पे क्या लाना है? 1 6 से 1 लाना पॉसिबल है नहीं ना, तो डिवाइड कर देते हैं कि फर्स्ट रो विल बी चेंजेस टू 1/3 इंटू R1, चेंज करो। क्लियर? सो हियर स्टार्टिंग कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल starting you have to do like this one, matrix A is equal to I into A, value replace कर दो यहाँ पे, that means 3 2 6 4 is equals to 1 0 0 1 into A। अब यहाँ पे पहले 1 लाना होगा
या तो इसको इंटरचेंज करके 1 लाने का ट्राई करो, या तो डायरेक्टली उसके डिवाइड करो। R1 चेंजेस टू 1/3 into R1। 0 इस तरह नहीं करना है, 0 ऐड सब्ट्रैक्ट से 1 डिवाइड से कर सकते हो। 3 को 3 से डिवाइड करो, 1 2/3 6 4 इज इक्वल टू, यहां पे 3 से डिवाइड करोगे 1/3 0 0 1 into a। अब 1 से यहां पे क्या लाना है, 0, सेकंड स्टेप ये होता है ना, तो क्या होगा, R2 चेंजेस टू R1 की वैल्यू को 6 में कन्वर्ट करनी है, तो R2 माइनस 6 इंटू R1 होगा, तो 6 इंटू R1 करोगे तो 1 2/3 6 माइनस 6 0 4 माइनस 6 into 2/3 is equals to ये 1/3 0, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो -2, ये 1 into a, तो ये भी क्या होगा, अरे सॉरी ये 4 एज इट इज, यहाँ पे 3 से कट होगा तो ये 2, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा, सो ये क्या आ गया 1 2/3 0 0 is equals to 1/3 0 minus 2 1 into a। यहां पे दोनों एलिमेंट 0 आ गए, सो दैट मीन्स A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगेन बोल रहा हूं, यहां पे A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। A इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं होगी, अगर इनवर्स में ये रो एशेलन मेथड आप अप्लाई कर रहे हो, रो एशेलन मेथड, कोई एक रो के तो सारे एलिमेंट 0 या कोई कॉलम के सारा एलिमेंट 0 आ जाए तो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अभी भी रिपीट कर रहा हूं, whenever you are of obtaining the inverse, आप जब भी इनवर्स आपका ऑब्टेन कर रहे हो, क्लियर, वो ऑब्टेन करने में अगर एक रो में या एक कॉलम के सारे एलिमेंट, नॉट टू, सारे एलिमेंट अगर 0 आ जाए तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, तो ये लिख लो इन होमवर्क एक्सरसाइज 3.4 के 1 to 12 क्वेश्चन, 1 to 12 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 यू हैव टू सॉल्व इट, ये लिख लो।